students. How are you? Welcome back to our EVS 2 period, that is environmental study, and we will continue our lesson number 5, that is the evolution of mankind. We had already completed point number 1, that is from Homo sapien to Homo sapien sapien. Okay, we started that the skilled man. What is the skilled man? The species of human who could use their hand skillfully is known as a skilled man. Okay, these events, this evidence, first evidence of this species were found in the border of the region between Tanzania and Kenya in the continent of the Africa. Okay, the scientists who discovered this species name it Homo habilis. ओके, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम क्या रखा? होमो हैबिलिस. व्हाट इज द होमो हैबिलिस मीन्स? दैट मीन्स होमो मीन्स मैन इन लैटिन. होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु कैन यूज हिज हैंड स्किलफुली. ओके, हिज ब्रेन वॉज बिगर दैन दैट ऑफ द एप्स. ओके, इसका जो ब्रेन है वो एप्स से थोड़ा बिगर था. आफ्टर दैट वी स्टडीड होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस मीन्स an important stage in the human evolution. What is the erectus? Erectus means the one who stand erect. Hence, the Homo erectus means the man who stand erect. Okay, compared to Homo habilis, he had a more developed brain. Okay, compared to Homo habilis से इसका brain थोड़ा क्या था? Developed था. Human of the Homo erectus species lived in groups. After that, we studied Homo neanderthal. हाँ, ये study किया था. One more stage of the development in the human evolution is Homo neanderthal. He was physically big and strong. Okay, his brain was more developed than that of the Homo erectus. इसका brain Homo erectus से और भी ज़्यादा क्या था? डेवलप्ड था. After that, Homo sapien. What is the Homo sapien? So Homo sapien is the name used for human that were more advanced than that of the Neanderthal. Okay, ये थोड़ा Neanderthal से थोड़ा एडवांस थे. Homo sapien means intelligent or intellectual man. What is the Homo sapien? Means intelligent or the intellectual man. Homo sapien species that the Homo sapien species that was more intelligent than any of the earlier species was named Homo sapien. In Europe, Homo sapien is also known as the Cro-Magnon man. That remains have been found in the continent of Europe, Asia and Africa. Okay, Homo sapien made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to. कौन से टास्क के लिए क्या यूज करना है, इस हिसाब से उन्होंने अपने टूल्स क्या किए थे? बनाए थे. And Homo sapien means what? We studied intelligent man or the thinking man. मतलब जो thinking कर सकता था. He could draw pictures on the basis of the actual observation as well as the imagination. मतलब इसका मतलब है he even began to make artistic objects also. Okay, he could draw, ये drawing कर सकते थे. एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे वो हंटिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पे क्या एक्चुअल में देखा उसके हिसाब से वो अपना पिक्चर्स ड्रॉ करते थे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजिनेशन ऑल्सो. ओके, नाउ वी आर कंटिन्यू और सेकेंड पॉइंट, होमो सेपियन सेपियन एंड द सिविलाइजेशन. ओके, होमो सेपियन सेपियन इज द नेम गिवन टू द ह्यूमन एज देयर कैपेसिटी टू थिंक डेवलप्ड even further than that of the Homo sapien. Homo sapien means you know that he intelligent man or a thinking man, but Homo sapien sapien means more developed than the Homo sapien. Okay, Homo sapien is the name given to the human as their capacity to think developed even further than that of the human sapien. Homo sapien से इनकी thinking capacity थोड़ी ज़्यादा थी. The capacity of their brain and their grasping power also developed further with time. उनकी जो grasping power थी, grasping मतलब कैप्चर करने की पावर, ओके, इज वेयर डेवलप्ड फर्दर विथ टाइम. टाइम के हिसाब से उनकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी थी वो भी क्या हो गई? डेवलप होते गई. ओके, वी
द मॉडर्न ह्यूमन आर होमो सैपियन सैपियन। आज के जो हम लोग हैं ना, टुडेज ह्यूमन आर होमो सैपियन सैपियन, है कि नहीं? क्योंकि हमारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है, मोर डेवलप्ड है। द अपीयरेंस एंड हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग indicate their similarity to their ancestor. Okay, the appearance of the behavior and the health characteristics of human being indicate their similarity to their ancestor. उनके जो ancestors हैं, ancestor मतलब पूर्वज, उनका जो appearance था और उनकी जो characteristic थी, health characteristic, वैसे ही उनके आगे वाले जनरेशन होता है। This is known as the heredity. इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं ना। जैसे आपके घर में आपके पापा जैसे है वैसे आप लोग भी होते हो, थोड़े बहुत सिमिलैरिटी होती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। नेचर में, हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है नहीं? जेनेटिक इज अ साइंस दैट स्टडी हेरिडिटी। ओके, ये जेनेटिक क्या है? एक साइंस है जिसमें हेरिडिटी का स्टडी किया जाता है। ओके, व्हाट इज द जेनेटिक? मीन्स अ साइंस दैट स्टडी हेरिडिटी। ओके, जेनेटिक research has shown that we have inherited some trait of the Neanderthal man. ये जो जेनेटिक रिसर्च किया गया उससे क्या पता चला कि हमें जो हेरिडिटी दिखती है वो किसकी है? निएंडरथल मैन जैसे। Thus it can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both. Genetic research has shown that we have inherited some trait of the Neanderthal man. Thus, it can be said that Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestors of the modern human. इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो Neanderthal man है वो and Homo sapien both are the ancestor of modern man. Okay? Around 11,000 to 10,000 BC, Homo sapiens developed and the technique of cultivating land and keeping animals. ये जो होमो सेपियन हैं उन्होंने कल्टिवेटिंग लैंड मतलब खेती कैसे करते वो और एनिमल्स कीपिंग, एनिमल्स पालना सीख गए थे। बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप्ड कैपेसिटी टू थिंक, इनमें क्या थी? वेल डेवलप्ड थिंकिंग कैपेसिटी थी। थिंकिंग मतलब सोचने की कैपेसिटी थी। सो द स्पीड ऑफ विच दे इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज विथ टाइम, मतलब वो बहुत सोचते थे ये क्यों हुआ, वो क्यों, ऐसा क्यों है। दैट इज थिंकिंग कैपेसिटी की वजह से उन्होंने क्या किया? बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ की। दे बिगैन टू लिव अ मोर सेटल्ड लाइफ, मतलब वो एक अच्छा लाइफ, सेटल्ड लाइफ जीने लगे। दे बिगैन टू ग्रो फूड ग्रेन इन द फील्ड। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर फूड इंक्रीज, मतलब उनमें जब वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, सेटल्ड लाइफ मतलब एक ही प्लेस पे सेटल्ड होना। ओके, पहले वो क्या करते थे? ओके, माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। Okay, but when they began to live a more settled life, they began to grow food grains, और उन्होंने food grains अपने फील्ड में लगाना चालू किया। एंड एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर बॉडी इंक्रीज, तो उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज हो गए। द चेंज्ड लाइफ स्टाइल एंड डाइट अफेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, उनका डाइट चेंज हुआ, उसकी वजह से उनके अपीयरेंस में भी, बिहेवियर में भी चेंज हो गया। Their body and face grow smaller than they had been in the earlier generation. उनका जो फेस था, उनके जॉ था, वो भी क्या होगा? स्मॉलर हुआ। ओके, जनरेशन टू जनरेशन। द नेम होमो सैपियन रिफ्लेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रादर दैन देयर फिजिकल prowess. All animals must necessarily meet their basic needs for food. Okay, आपको पता है कि all animals must necessary to meet their basic needs for food. सब animals की basic need क्या है? Food. However, modern human are not satisfied with only doing that much. लेकिन उनकी basic need food है ही, but जो human being है is not satisfied with only doing that much. Though through their effort to enrich with their lives using their creativity. फिर उन्होंने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका यूज़ करके अपना लाइफ इनरिच किया. इंटेलिजेंस एंड द स्किल्स ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड अ कल्चरल एंड द कंटिन्यूस टू डेवलप इट. ओके,
ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या अपनी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और स्किल का यूज़ करके कल्चर में बहुत ही डेवलपमेंट करते गए. ओके, द टेक्नोलॉजी एंड द कल्चर प्रोग्रेस अचीव्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड domesticating of animals has been extremely rapid. Okay, the technology and cultural progress achieved by modern human after the beginning of culture. मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी और कल्चर प्रोग्रेस जो है वो कब अचीव हुआ, जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर चालू किया एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल. और डोमेस्टिकेटिंग मतलब एनिमल पालना चालू किया, उसके बाद वो थोड़ा एक्सट्रीमली उनमें डेवलप होते गए. ओके, द हिस्ट्री ऑफ the evolution of human that began from apes can be divided into various stage. हमने देखा एप्स से स्टार्ट हुआ, मंकी जैसे स्ट्रक्चर था. हाँ, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की इवोल्यूशन की हिस्ट्री कब से चालू होती है, फ्रॉम एप्स. हाँ, कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस स्टेजेस. इन द फॉलोइंग लेसन वी शैल लर्न अबाउट वेरियस फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर एट दिस डिफरेंट स्टेज. तो उनके अलग अलग स्टेज में क्या फेस्ड हुए वो हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे. ओके, सो दिस लेसन इज ओवर हियर. रीड द लेसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, राइट डाउन द आंसर्स. एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ये आपको. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर ईच क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, गिव रीजन. ओके, ईजी क्वेश्चन है. इफ यू रीड द लेसन केयरफुली यू इजीली गॉट द आंसर्स. Look here. Here is the table. Read the clues given below and find the word hidden in the box. यहाँ पे एक क्विज है, मस्त है. आप क्या करने का, आपको यहाँ पे ये दिया है, क्लूज दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हु स्टूड अपराइट, किसको बोलते थे, जो सीधे खड़ा हो सकते उनको क्या बोलते थे. हाँ, उसका आंसर ढूंढ के आपको उसको क्या करना है, सर्कल करना है, या फिर इसके आगे उसका आंसर लिखना है. और साउंड एट निएंडरथल कुड मेक, कौन सा साउंड मेक करते थे, उसका आंसर इसमें ढूंढ के लिखना है. अंडरस्टैंड. ह्यूमन हु यूज़ देयर हैंड्स, जो अपने हैंड्स का यूज़ करते थे स्किलफुली, उनको क्या बोलते हैं. ओके, दीज आर द क्लूज. ओके, यूजिंग दीज क्लूज यू हैव टू फाइंड योर आंसर्स इन हियर. ओके, हियर प्रिपेयर अ चार्ट टू शो द प्रोग्रेस ऑफ मैन एट द प्रीवियस स्टेज फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सेपियन सेपियन. तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है फ्रॉम स्टार्टिंग होमो हैबिलिस टू होमो सेपियन. इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमो हैबिलिस, उन्होंने क्या स्टूल बनाया, उनका प्रोग्रेस, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, उनका सब डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है, वो सब का लिखने का है, स्टेज बाय स्टेज. अंडरस्टैंड. ओके, सो आवर पोर्शन आई हैड completed here up to 5 lessons. The first semester there are 2 lessons only, lesson number 4 and 5. Read this lesson carefully. कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए मैंने आपको क्या बोला है, खुद से क्वेश्चन बनाओ. अभी क्वेश्चन कैसे बनाने का वो मैंने आपको नहीं बताया था. इजीली, फॉर एग्जांपल, लुक हियर, रीड दिस पैरा ओनली. व्हाट इज द पैरा, द स्किल मैन, द स्पेसीज ऑफ ह्यूमन हु कुड यूज देयर हैंड स्किलफुली इज नोन एज द स्किल्ड मैन. तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकते हो. हाँ, विच ह्यूमन इज कॉल्ड द स्किल्ड ह्यूमन, विच ह्यूमन वॉज कॉल्ड द स्किल्ड ह्यूमन. लाइक दिस एक एक लाइन पे आपका क्वेश्चन बन सकता है. सो यू कैन रीड द लेसन केयरफुली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमो हैबिलिस. हाँ, होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज देयर हैंड स्किलफुली. ओके, अंडरस्टैंड. लाइक दिस you can read one para and make questions. The stone tools made by Homo habilis were not used for hunting big animals. They had limited use such as scrapping. What was the use of the tools made by Homo habilis? Homo habilis ने जो tools बनाए थे उसका यूज़ किसके लिए होता था, ठीक है ना. इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, स्मॉल क्वेश्चन, स्मॉल fill in the blanks and match the following. Okay, and send me. Okay, when you read the lesson carefully you got the answers and question also. Okay, thank you.